عید میلاد النبی کے موقع پر میں یہ بول رہا ہوں کہ عید میلاد النبی میں ایسا کیا ہوتا ہے جو جس کو آپ لوگ غلط بولتے ہو. اس دن نعت خوانی ہوتی ہے اور ایک ڈسپلین وے میں جو ہے جلوس نکالا جاتا ہے. جتنا بھی ڈی جے ہے یہ سب کو ہم لوگ غلط مانتے ہیں, ناجائز مانتے ہیں, حرام مانتے ہیں. اس کا ہم لوگ جو ہے کبھی بھی سمرتھن نہیں کرتے, اور جو کرتا ہے وہ جاہل ہے, اس کا ہم لوگ سے کوئی واسطہ نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دن نعت خوانی ہونا, غریبوں کو کھانا کھلانا, اس میں کیا آپ کو غلط دکھ رہا ہے, آپ یہ بتائیے. عید میلاد میں عید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اور سب وہ تو ثانوی بات عید کا مطلب ہوتا ہے, عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی, خوشی خوشی منانا. اور خوشی اس دن جو دنیا کی سب سے بڑی رحمت ہے رسول اللہ وہ آئے, تو خوشی کیوں نہیں منائے, بتائیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سرفراز بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ نے پہلے یہ کہا کہ عید میلاد میں ایسا کیا ہوتا ہے جو درست نہیں. آواز آ رہی ہے سوال آپ سے یہ ہے, ابھی آنے لگی, جو کچھ عید میلاد میں ہوتا ہے, جی جی, عید میلاد میں جو کچھ ہوتا ہے, جو کچھ آپ کرتے ہیں, اگر وہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر, وہی کام رسول اللہ کی, یعنی ایک عید ہجرت منا لی جائے, ایک عید بعثت منا لی جائے, ایک عید فتح مکہ منا لی جائے, ایک عید فتح بدر منا لی جائے, تو کیا حرج ہے, آپ بتائیے. ہاں بتا رہا ہوں میں. دیکھیے ہم لوگ ہر دن عید مناتے ہیں. آپ ہماری تقریر کو سنیے, آپ ہمارے علماء کی بیان کو سنیے, اور ابھی آپ علماء نہیں, ہر دن عید مناتے ہیں, آپ ہر دن عید مناتے ہیں, ٹھیک. تو آپ جب ہر دن عید مناتے ہیں تو ایک خاص عید منانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خاص عید منانے کی ضرورت پڑی ہے نا, تاکہ ایک رسول اللہ کو یاد کرنے کا, اور ایک اسی بہانے غریبوں میں کھانا تقسیم ہو جائے. اسی بہانے رسول اللہ کو, ایک منٹ, بہتر ہے, یہ رسول اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر کے گئے ہیں وہ یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد ہے؟ بالکل یاد ہے, شریعت بالکل یاد ہے. اس شریعت میں رسول اللہ ہم کو کتنی عیدیں دے کر کے گئے ہیں؟ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی. بس اسی بنیاد پر ہم ارے مطلب چھوڑیے نا, اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا عید مطلب کیا ہوتا ہے. عید کا مطلب صرف آپ کو پتا ہے یا رسول اللہ کو بھی پتا تھا؟ ویسے جمعے کے دن کو بھی کہا گیا نا, پھر تو جمعے کے دن کو بھی خوشی کا عید کہا گیا, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جی, کون بولتا ہے کہ جمعے کے دن کو عید کہا گیا؟ بالکل کہا جاتا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں, جمعے کو چھوٹی عید کہا جاتا ہے. کس نے بولا کہ رسول اللہ کا, کسی نے کہا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے؟ نہیں, میں ریفرنس بتاؤں گا آپ کو, ریفرنس نہیں ہے ابھی, لیکن یہ بھی اس حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کو جو ہے, کس نے کہا بھائی, کس نے کہا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے؟ نہیں, اس کا ریفرنس میرے پاس نہیں ہے, میں ریفرنس دوں گا آپ کو. ریفرنس کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں میں. کس نے کہا ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے؟ یہ حدیث میں آتا ہے شاید. یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا یا پھر کسی صحابی نے کہا, یہ میرے کو بھی کنفرم کرنا ہوگا, لیکن یہ کہا جاتا ہے اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے شاید. حدیث میں آتا ہے جیسے جمعہ کا دن حدیث میں آتا ہے کہ عید کا دن ہے, کیا ویسے ہی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 12 ربیع الاول بھی عید کا دن ہے؟ ویسے ہی آتا ہے یا نہیں آتا, یہ آپ مت بتائیے. آپ یہ بتائیے کہ یہ بھی عید کا دن, ارے آپ بتائیں گے نا, عید آپ منا رہے ہیں, میں بتاؤں گا. عید آپ منا رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں کہ جمعہ کا دن حدیث میں آتا ہے کہ عید ہے. ٹھیک ہے بھائی, جمعہ کا دن حدیث میں آتا ہے عید ہے, مانتے ہیں کہ جمعہ کا دن حدیث میں آتا ہے عید ہے. 12 ربیع الاول کا دن بھی حدیث میں آتا ہے عید ہے. نہیں, آپ نے کبھی کہا کہ صرف 2 ہی عید مانا جاتا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ جمعہ کو مانا جاتا ہے کہ نہیں. آپ اس بات سے رجوع کریے. ابھی میں نے تو پوچھا تھا آپ سے, میں نے تو ابھی تو میں نے کہا ہی نہیں کہ 2 عید ہے. میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر کے گئے اس میں عیدیں کتنی ہیں, میں نے آپ سے پوچھا تھا. میں نے ابھی تو یہ کہا بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو ابھی کہا بھی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر کے گئے, کیا اس شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عیدیں ہوں گی, یا آپ طے کریں گے یا رسول اللہ طے کریں گے؟ شریعت کس پہ نازل ہوئی, آپ پر یا رسول اللہ پر؟ اب میری بات سنیے. دیکھیے, اس کو عید کا دن کہنا ہے یا نہ کہنا ہے نا, یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں. اس دن خوشی منانا آپ کے لیے نہیں ہوگا, ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ, ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. ایک آدمی کوئی عبادت ایجاد کر لے اور بولے کہ میں اس کو, یہ ایک نماز ہے, اب نماز کہو یا نہ کہو, عید کہتے ہیں آپ. یہ آپ اس کو اس سے فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ آپ نے لکھا ہوا عیدوں کی عید, آپ نے عیدوں کی عید لکھا ہوا ہے, یعنی یہ جو عید ہے وہ ساری عیدوں کی عید ہے. یہ جو عید آپ اپنی بنائی ہوئی عید ہے, اس عید کو آپ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی عید سے افضل بتا رہے ہیں. اس کو آپ عید مطلب خوشی ہوتا ہے, کون سی لغت میں لکھا ہے کہ عید مطلب خوشی ہوتا ہے بھائی؟ جھوٹ بول رہا ہوں. عید کا مطلب ہوتا ہے, عید آدھا یعودو, عید کا مطلب ہوتا ہے وہ دن جو بار بار لوٹ کر کے آئے. عید کا مطلب ہوتا ہے تہوار. اللہ ہماری شریعت میں, بھائی چھوٹی سی بات ہے, اس کا سوال کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی شریعت آپ پہ نازل ہوئی یا اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی؟ دیکھیے, میرا سوال ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا
कि आप ये बताइए कि उस दिन आप ईद मिलादुन नबी वो के दिन मत ऐसा कहिए क्या जो आप होता कहना है चाह रहे हैं जिसको मेरे याद भाई। कर मैंने आपने जो एक बताया? आसान सा ठीक है? सवाल किया है, क्या इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है? शरीयत आप पे नाजिल हुई या रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई? शरीयत ये कोई सवाल ही नहीं है, बेशक रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ, ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं? तो इस शरीयत में ईद कौन से दिन मनाई जाएगी, आप तय करेंगे कि रसूलुल्लाह तय करेंगे? बिल्कुल रसूलुल्लाह तय करेंगे, और ईद का मतलब हम लोग खुशी तो से लेते हैं। रसूलुल्लाह ने ईद का मतलब कौन ऐसा कौन नहीं से है कि दिन ईद को कोई तय त्योहार किया आपने है? कर दिया। तय हाँ? किया वो जो दो ईद उल फितर और ईद उल अजहा जो तय किया गया है ना, वो ईद तो है। हाँ ये खुशी हम लोग, ये कोई त्योहार हम लोग ने ऐसा गढ़ा नहीं है, या फिर कोई फर्ज नहीं है मनाना। ठीक है, जिस तरीके से ईद में रोजा रखना हराम है, अरे भाई इसलिए ईद इसमें मना वैसा कोई रहे हैं ना, हराम और फर्ज का फर्ज नहीं है। फर्ज समझ करके मना रहे हैं या मुस्ताहब ईद समझ हम लोग करके मना खुशी, रहे हैं? ईद मना रहे ईद हैं, हम बल्कि आप तो लिख रहे हैं ईदों की ईद, यानी आपकी गढ़ी हुई ईद खुशी ये की खुशी, रसूलुल्लाह की बताई हुई ईद से भी ज्यादा अफजल है। ईदों की ईदों ईद की का ईद मतलब मतलब ये खुशियों की होता खुशी, है, हाँ, खुशियों की खुशी। तो ईदों की अल्लाह के मतलब रसूल ने खुशी दो बिल्कुल वक्त बताए खुशी मनाने के, आप कह रहे हैं आपकी गढ़ी हुई ईद रसूलुल्लाह की खुशी। बनाई हुई, रसूलुल्लाह ये की बताई हुई ईद से आपकी बनाई हुई ज्यादा अब मैं अफजल है। आपको तो भाई अब मैं रसूलुल्लाह आपको दलील दे सल्लल्लाहु रहा हूँ अलैहि कुरान ईद से, का, देखो बहुत आसान सी बात है मेरे भाई, ईद शरीयत अब का मैं हिस्सा दलील दे रहा हूँ होती है। कुरान से। और शरीयत नहीं, में शरीयत इसको में हम लोग शरीयत का शरीयत इस्तेमाल में नहीं ईद रहे ना, कब मनाएंगे ये रसूलुल्लाह बताएंगे। आप दलील इस बात की इसको देंगे हम लोग रसूलुल्लाह कोई, ने 12 रबीउल अव्वल को ईद देखिए मनाने का हुक्म दिया है। ये बात आपकी तब सच होती है जब ये हम लोग इसको फर्ज मानते हैं, फर्ज मान ही नहीं रहे ना। ये जस्ट एक, आप ये ईद मानते हैं, फर्ज माने या ना माने ये कौन सी बात है? मुस्ताहब इबादत आप अपनी तरफ से कर लेंगे, फर्ज नहीं आप मानना ये कौन सी बात की दलील होती है? और इस दिन हम शरीयत लोग में इस दिन फर्ज हो, ईद क्यों मनाते हैं? मुस्ताहब शरीयत का हुक्म होता है कि नहीं? एक एक बात इस पर दिन एक एक ईद बात क्यों पर मनाते बात हैं? करें। आपने ये कहा, आपने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि हम इसको वाजिब नहीं मानते, मुस्ताहब मानते हैं, है ना? तो सवाल ये पैदा हो रहा मतलब है कि शरीयत में कोई चीज मुस्ताहब है, इसकी भी दलील हमको कहां से देनी पड़ेगी? अपनी तरफ से हम कोई भी देखिए, मुस्ताहब इबादत कर सकते हैं? आपको नहीं बनाना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं बनाएंगे तो आपको गुनाह मिलेगा, या फिर आप जो है जहन्नम में जाएंगे, अगर आप इसलिए कि पर आपने नहीं हम ये बनाया। कह रहे हैं कि लेकिन आप आपको बनाएंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। हाँ हाँ, आप कह रहे थे, इसलिए तो हम यहाँ पर आए ना, कि क्योंकि आप ये गलत बात कह रहे हैं कि आपको गुनाह मिलेगा, क्योंकि हम लोग कोई गलत काम करते ही नहीं है उस दिन। आप ये बताइए गलत काम क्या? डीजे बजाना आप ईद मनाते हैं, ईद मनाना ही गलत काम है भाई, ईद मनाना ही गलत काम है। अच्छा जरूर एक बात बताइए, एक आसान सी, मैं आपको ना एक आसान सी चीज, देखो अभी आपके समझ में आ जाएगा, अभी आपके समझ में आ जाएगा। जोहर की नमाज में पहली रकात में कितने सजदे? पहली रकात में 2 सजदे। मैं 3 कर लूं तो अरे सवाब ये मिलेगा? बात आप 3 करेंगे तो आपका नमाज का प्रोसेस गलत हो जाएगा। इसमें कोई प्रोसेस थोड़ी है कि आपको नहीं, मनाना या नहीं मैं मनाना। पूछ रहा हूं कि मैं अगर 3 सजदे कर लूं तो सवाब मिलेगा? ये आप सवाब, वो तरीका जो रसूलुल्लाह का है वो उसके खिलाफ चला जाएगा ना, इसमें आप सवाब कैसे मिलेगा? ये कोई तरीका, ये हम लोग गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। यानी सजदे में मैं कोई गलत काम करूंगा? सजदे में मैं सुभान रब्बियल आला पढ़ूंगा, सजदे में मैं रब्बी सिरनी पढ़ूंगा, सजदे में मैं अल्लाह की हम्द करूंगा, सजदे में मैं रसूलुल्लाह पे दरूद भेजूंगा, तो मैं भी कोई गलत काम नहीं करूंगा भाई। सजदे में मैं एक सजदा करूंगा जिसमें खास मैं रसूलुल्लाह पे दरूद भेजूंगा, तीसरे वाले सजदे में मैं रसूलुल्लाह पे दरूद भेजूंगा, तो मुझे गुनाह मिलेगा? जी, अब मेरी बात देखिए, ये तरीका क्या आप रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ जाएंगे, इसलिए आपको गुनाह मिलेगा। ये कोई हम लोग तरीके के खिलाफ नहीं जा रहे, कोई गलत काम उस दिन हो ही नहीं रहा जो आप बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने 2 सजदा बताया है तो आप 3 सजदा कर लें तो गुनाह मिलेगा, और रसूलुल्लाह ने 2 ईदें बताई हैं और आप तीसरी ईद मना रहे हैं तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। देखिए, ईद का मतलब खुशी मनाने से मना नहीं किया गया, खुशी मनाने का हुक्म दिया गया। सजदे का मतलब इबादत, सजदे का मतलब इबादत। अगर ईद का मतलब खुशी तो सजदे का मतलब इबादत, तो मैं बोलूं अरे मैं भी तो इबादत ही कर रहा हूं, जैसे आप खुशी मना रहे हैं रसूलुल्लाह की तो मैं भी तो इबादत ही कर रहा हूं। आखिर अल्लाह के रसूल ने 2 सजदे बताए हैं, मैं 3 सजदे नहीं कर सकता एक रकात में, तो रसूलुल्लाह ने 2 ईदें बताई हैं तो मैं 3 ईद क्यों मनाऊं? तीसरी ईद कैसे मना सकता हूं मैं? आप बताइए क्या फर्क है मेरे तीसरे सजदे में और आपकी तीसरी ईद में? बुनियादी फर्क क्या है कि मैं 3 सजदे नहीं कर सकता हूं पर आप 3 ईदें मना सकते हैं? क्या फर्क है? बुनियादी फर्क ये है कि इसका कुरान में भी हुक्म है। अब मैं आपको दलील दे रहा हूँ कुरान से, अब आप बात सुनिए। ईद कुरान मजीद में सजदे कहाँ हुक्म है? कहाँ हुक्म है कुरान ईद में? कहाँ मनाने का हुक्म? अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि तुम मेरी रहमत का खूब चर्चा करो। और दूसरी जगह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि दुनिया की सबसे बड़ी रहमत जो है रसूलुल्लाह है, हम रसूलुल्लाह की उस रहमत का चर्चा कर रहे हैं। फिर ये कुरान से साबित है कि सजदे का भी तो हुक्म है, कुरान मजीद में सजदे का भी तो, एक मिनट, कुरान मजीद में सजदे का भी तो हुक्म है, वस्जुद वक्तरिब। अल्लाह ताला ने फरमाया सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदे का हुक्म भी कुरान में है, तो फिर क्या आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? कुरान में सजदे का हुक्म है ना, कुरान में सजदे का जो हुक्म है, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने उसे 2 सजदा करके दिखाया। लेकिन यहाँ पर कहीं भी खुशी मनाने का इनकार रसूलुल्लाह ने नहीं किया, खुशी मनाने से मना नहीं किया जो आप बात कर रहे हैं। अगर खुशी मनाने से मना किया होता तो हम करते, आप गलत बोलते। कुरान मजीद में तो फिर अल्लाह के रसूल ने सजदा करने से कहा इनकार किया रसूलुल्लाह ने कि सजदा मत करो?
सजदा वही किया ना, तो करके दिखाया कि 2 करना है। आप ऐसी बात कर, 2 तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी जो कुरान मजीद में हुक्म था, एक मिनट, बहुत अच्छी बात, आप कह रहे हैं कुरान में सजदे का हुक्म है, रसूलुल्लाह ने सजदा करके दिखा दिया, तो कुरान मजीद में कोई भी फजलिल्लाहि व रहमती खुशी मनाने का हुक्म है, रसूलुल्लाह ने खुशी मना के दिखाई कि नहीं? पहली बात तो खुशी मनाने का हुक्म नहीं है, खुश होने का हुक्म है। लेकिन अगर हम मान लें कि कुरान में खुशी मनाने का हुक्म है, तो रसूलुल्लाह ने इस आयत पर अमल किया कि नहीं किया? कुल बिफजलिल्लाहि व रहमती, अल्लाह के रसूल ने, एक मिनट भाई, आप ना अपनी बात से आगे पीछे मत जाओ। आप कह रहे हो कि कुरान मजीद में सजदे का हुक्म है, रसूलुल्लाह ने सजदा करके दिखाया। कुरान मजीद में खुशी मनाने का हुक्म है, रसूलुल्लाह ने इस आयत पर अमल किया कि नहीं किया? देखिए, आप मेरी बात सुनिए, हम आपको क्या बोल रहे हैं ना कि आप जो ये बात तर्क देते हैं कि सहाबियों ने नहीं किया, इसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई। अरे भाई अपनी बात पे रहो, अपनी बात पे रहो, अभी अपनी बात पे रहो। दलील आपने पेश किया, उस दलील पे गौर कर रहे हैं। आपने दलील पेश की, उस दलील पर हम गौर कर रहे हैं। आपने कहा कुरान मजीद में खुशी मनाने का हुक्म है, मैंने कहा कुरान मजीद में तो सजदा करने का भी हुक्म है। आपने कहा लेकिन रसूलुल्लाह ने तो सजदा करके दिखाया, कैसे सजदा करना है? मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस आयत में आप कह रहे हैं कि इसमें खुशी मनाने का हुक्म है, रसूलुल्लाह ने उस आयत पर अमल किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। अगर इस आयत का मतलब यह है कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाओ, तो क्या रसूलुल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाई? देखिए, रसूलुल्लाह की मनाइए, बस वो तो खुद रसूलुल्लाह है, हम मनाना किसको है? जो अपने रसूलुल्लाह एक मिनट भाई, एक मिनट। आयत पर रसूलुल्लाह ने, एक आयत कुरान मजीद की नाजिल हुई, उस पे रसूलुल्लाह ने अमल किया या नहीं किया? दो में से एक बात बताओ। बिल्कुल सीधा सा डिफरेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसको बनाना चाहिए? जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। अब रसूलुल्लाह खुद थोड़ी बना के दिखाएंगे आपको। एक मिनट करो, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आयत में हुक्म था खुशी मनाने का। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये खुशी मनाने का जो हुक्म था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया या नहीं किया? जो कुरान का हुक्म था, क्या ऐसा है कि कुरान के हुक्म पर आप तो अमल कर रहे हैं लेकिन रसूलुल्लाह ने अमल नहीं किया था? ऐसा है कि एक कुरान का हुक्म था, रसूलुल्लाह ने उस पर अमल नहीं किया, आप जनाब उस पर अमल कर रहे हैं? हाँ, उस दिन रोजा भी रखा करते थे जो हम लोग रखते हैं, ठीक है? वो ये भी हदीस में आती है कि उस दिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। मंडे का दिन था उस टाइम, 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे। बिल्कुल जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को रसूल रोजा रखते थे। जिस दिन वो दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस दिन वो रोजा रखा करते थे। 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह साल में एक मरतबा 12 रबीउल अव्वल जब आता था, रसूलुल्लाह रोजा रखते थे। अपनी पैदाइश के दिन में रोजा रखा करते थे। इसका ये हदीस में 12 रबीउल अव्वल, भाई आप 12 रबीउल अव्वल को ईद मना रहे हो, रसूलुल्लाह पीर के दिन रोजा रखते थे। पीर के दिन रोजा रखना 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाने की दलील कैसे हो गया? मैं आपसे बार बार सवाल कर रहा हूँ, ये जो आप आयत दलील के तौर पे पेश कर रहे हैं कुरान की 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाने की, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस आयत पर रसूलुल्लाह ने अमल किया या नहीं किया? जो आयत कुरान की आपने, एक सादा सा सवाल मैं कर रहा हूं और आप उससे फरार कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पता है। आप कुरान से ईद मिलाद मनाने की दलील दे रहे हैं, तो कुरान मजीद में जो हुक्म आया था, रसूलुल्लाह ने उस हुक्म पर अमल किया या नहीं किया? देखिए, ये आयत जो है ना, वो किसके लिए है? जिसके लिए अल्लाह के रसूल रहमत है, और अल्लाह के रसूल खुद के लिए रहमत नहीं, अल्लाह के रसूल हमारे लिए रहमत है, तो हमें खुशी मनानी है ना। ये बिल्कुल चीज है। अब बात समझिए, अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया के लिए रहमत है। अब वो खुद कभी मना दिखाएंगे कि इस तरीके से आपको मनाना है। उन्होंने रोजा भी रखा और इसमें कोई मना ही नहीं है। अब वो बिल्कुल जायज तरीके से करना है। अब बात समझ रहे, कोई एक तरफ आप कह रहे रसूलुल्लाह अपने लिए रहमत भी नहीं, आप दूसरी तरफ कह रहे रसूलुल्लाह ने शुक्राने के तौर पे रोजा भी रखा। रहमत नहीं थे तो रोजा क्यों रखते थे अल्लाह के रसूल? अपने लिए रहमत भाई, अल्लाह ताला का दीन सबके लिए रहमत है। अल्लाह ताला के लिए रसूल को बेशक खुद रसूलुल्लाह के लिए बहुत बड़ी रहमत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वही को रहमत कहा है। अच्छा, चलो मान लो कि अल्लाह के रसूल, आपका ये दावा भी मैंने मान लिया। ये तो बहुत ही अजीब बात आपने कही दी कि रसूलुल्लाह की विलादत खुद रसूलुल्लाह के लिए रहमत नहीं थी। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी तख्लीक को अपने सारे इंसानों के लिए रहमत बताया है। अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अरे भाई सुन लो पहले, अल्लाह ताला ने तो हर इंसान की तख्लीक को रहमत बताया है। अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान है जिसने कुरान सिखाया और इंसान को पैदा किया। तो हर इंसान की पैदाइश अल्लाह ताला की एक रहमत होती है कि अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है। पर चलो मान लेते हैं कि रसूलुल्लाह की, आपके नजदीक है कि रसूलुल्लाह का पैदा होना खुद रसूलुल्लाह के लिए रहमत नहीं था। पूरी दुनिया में रहमत था, खुद रसूलुल्लाह के लिए आप कह रहे रहमत नहीं था। कितनी अजीब बात आप कर रहे हैं। और मैं मान लेता हूँ उम्मत के लिए रहमत थी, तो उम्मत के लिए रहमत थी। अगर उम्मत के लिए रहमत थी, हाँ आप बोलने का वक्त नहीं देते ना, मैं ये बोल ही नहीं रहा। आपने अरे आप जो दलील दे रहे हैं उसका जवाब तो सुनिए।
मैंने ये कहा ही नहीं कि रसूलुल्लाह खुद की रहमत नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि मेरा वक्त था ये देखिए वही मैं बोला, बहुत अजीब बात आपने कह दी। फिर ये सवाल पैदा होगा, ठीक, आपने रुजू कर लिया अपनी बात से, बिल्कुल बिल्कुल। आप बात रसूलुल्लाह की पैदाइश रसूलुल्लाह के लिए भी रहमत थी, आप मान रहे हैं, बिल्कुल। अब आप मैं क्या कहना चाहता था, हम कहना ये जा रहे थे, फिर वो सवाल पैदा होगा। नहीं, अभी हम एक जगह अटके हुए भाई, पहले यहाँ से फंसेंगे फिर दूसरे दरवाजे में जाएंगे ना, अभी तो हम एक जगह अटके हुए हैं। आप कह रहे हैं तो दीन अकल से ना समझा जाए, जज्बात से समझा जाए, मेरे मर्जी में जो है। आप भी तो, मैं सजदा करना चाह रहा हूँ, आप भी तो लॉजिकल चीज को पकड़े हुए भाई। मैं 2 की जगह 3 सजदा करना चाह रहा हूँ, मैं 2 की जगह 3 सजदा करना चाह रहा हूँ, आप भी तो लॉजिकल चीज को पकड़े हुए हैं। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जज्बात है, तो अल्लाह की मोहब्बत के भी तो जज्बात होते हैं ना मेरे भाई। अल्लाह की मोहब्बत के जज्बा होते हैं कि नहीं दिल में अंदर, तो अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर के मैं 2 की जगह 3 सजदा करना चाह रहा हूँ, क्यों आप अपोज कर रहे हैं? करने दीजिए ना मुझे 3 सजदा। रसूलुल्लाह ने आपको करके दिखाया ना 2 सजदा, आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर खुशी मनाने से मना नहीं किया। तो रसूलुल्लाह ने वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने, अगर आप कह रहे हैं कुरान की इस आयत में खुशी मनाने का हुक्म है, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करके दिखाया या नहीं दिखाया? या आप कह रहे हैं कि कुरान का एक हुक्म था, रसूलुल्लाह ने खुद नहीं किया, बाद में जाकर के उम्मत को करना है? वो नहीं, देखिए रसूलुल्लाह ये जो है ना, किसको करना है, पर अमल नहीं किया रसूलुल्लाह ने, ये करना उस आयत पर रसूलुल्लाह ने 1 मिनट भाई, एक जुमले में हाँ या ना का जवाब दे ताकि बात क्लियर हो। उस आयत पर, जिस आयत को आपने खुशी मनाने के लिए बतौर दलील पेश किया, उस आयत पर रसूलुल्लाह ने अमल किया या नहीं किया? 2 में से एक जवाब दीजिए। बेशक अमल किया, क्या करने, मतलब रसूलुल्लाह जो है दुनिया में आए, ठीक है, तो उस दिन जो है ये भी हदीस में आता है कि उन्होंने रोजा रखा, ये भी इसकी एक निशानी है कि उन्होंने अमल किया। और दूसरी चीज ये है ना, कि देखिए सही बुखारी में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया हज़रत उमर से कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी माँ बाप औलाद सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना करो। तो उस मोहब्बत की दलील क्या है ना, उस मोहब्बत की दलील सुन्नत है, इत्तिबा है, और मोहब्बत होती है दिखना भी चाहिए ना, बिना दिखाए मोहब्बत नहीं होता, ये दुनिया का रूल है। अब बात समझ रहे हैं, मोहब्बत होती है तो उसको जिंदा करना पड़ता है, और बिल्कुल जायज तरीके से, कोई गलत तरीके से नहीं। डीजे बजा कर नहीं, ये हराम है, इसको हम लोग हराम मानते हैं। मैंने फिर से जो सवाल किया आपने जवाब नहीं दिया, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि उस पर रसूलुल्लाह ने अगर अमल किया, अगर आप कहते हैं उस आयत का माना यह है कि अल्लाह के रसूल की पैदाइश पर ईद मनाना चाहिए, तो रसूलुल्लाह ने ईद मनाई 12 रबीउल अव्वल को? देखिए, आप जो चाह रहे हैं ना कि मैं आपके तरीके से जवाब दूं, मैं वैसा नहीं दूंगा ना, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। आप जो चाह रहे हैं बुलवाना, वो मैं नहीं बोल सकता, बात समझ रहे हैं मेरी? तो उन्होंने रोजा रख के इस बात का जो है प्रूफ दिया, और किसको मनाना है मोहब्बत, हम करते हैं, हमें इस बात को मनाना है। अब देखिए, रोजा रख के प्रूफ दिया, तो रोजा रखिए ना आप, रोजा रखते हैं हर पीर को, रोजा रखते हैं, बिल्कुल रोजा रखते हैं। तो वो जो रसूलुल्लाह ने किया वो करिए ना। आयत पर अमल कैसे करना है? देखो मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक बात, सर देखिए, आप ये बताइए, नात ख़्वानी करना गुनाह है? नात ख़्वानी करना गुनाह है? बताइए आप। गरीबों को खाना खिलाना गुनाह है? सजदा करना गुनाह है? सुभान रब्बियल आला पढ़ना गुनाह है? सजदा 2 सजदा रसूलुल्लाह ने करके दिखाया, मैं कितनी बार ये बात को रिपीट करूं, लेकिन यहाँ पर क्या रसूलुल्लाह ने 2 ईद मनाकर नहीं दिखाई? क्या रसूलुल्लाह ने 2 ईद मनाकर नहीं दिखाई? ईद हम लोग यहाँ पर एज फेस्टिवल नहीं ले रहे, ईद हम लोग यहाँ पर खुशी ले रहे हैं। आप एक ही बात पर करना, ईद का मतलब ही फेस्टिवल होता है, ईद का मतलब ही फेस्टिवल होता है, ईद होती फेस्टिवल है, खुशी। हम ईद को एज खुशी डिफाइन कर रहे हैं ना, हम तो सजदा एज इबादत, तो सजदा एज इबादत नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते क्योंकि रसूलुल्लाह ने 2 सजदा करके दिखाया। आप बात समझ रहे हैं ना? तो रसूलुल्लाह ने 2 ईदें मना करके भी दिखाई है। नहीं, अगर 2 सजदों के 3 सजदा नहीं कर सकते, तो रसूलुल्लाह ने भी 2 ईदें मना करके दिखाई है। रसूलुल्लाह ने 2 ईदें, ये कितनी अजीब बात है, ये कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। ईद मतलब ही फेस्टिवल, ईद इज अ फेस्टिवल, ईद होता ही फेस्टिवल है। ईद को आप फेस्टिवल बोल देंगे तो ईद तो फेस्टिवल ही होता है भाई। उम्मत के लोग कौन से दिन फेस्टिवल मनाएंगे ईद का? अरे तो सजदे का मतलब इबादत होता है, फिर सजदे का मतलब इबादत होता है। आप यहाँ फंस जा रहे हैं ना, आप यहाँ फंस जा रहे हैं। रसूलुल्लाह ईद मना कर नहीं दिखाई, रसूलुल्लाह ने ईद नहीं मना करके दिखाई। आप बार घूम करके वही जलेबी बन रही है भाई, सहाबियों ने आप जलेबी बना रहे घूम करके, सहाबा इकराम ने नाथखानी करी है। अच्छा चलो, रसूलुल्लाह वाली बात आप नहीं जवाब दे पाए। सहाबा मोहब्बत करते थे, क्या सहाबा ने 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मनाई? क्या सहाबा ने 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मनाई? कौन सी सदी हिजरी में मनाई? तो कौन सी सहाबा ईद मिलाद मनाते थे? इसी का जवाब मैं आपको दे रहा था ना, इसी का मैं जवाब आपको दे रहा हूँ कि आप जो कहते हैं कि सहाबा ने नहीं मनाया तो आप क्यों मनाते हो, इसका जवाब मैं आपको दे रहा था उसमें। आप बात को एक जगह फंसा दिए, ठीक है? देखिए, मैं कहना ही चाह रहा था, एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आम नॉर्मली ऐसा करता हूँ कि एक दलील देने के बाद मैं बोलता हूँ अगली दलील अगली मर्तबा दीजिएगा। बिल्कुल
देखिए आपने जवाब दे दिया, अभी मैं फिर वही कह रहा हूँ, फिर वही पूछूं आपसे कि रसूलुल्लाह ने ईद मनाई कि नहीं मनाई? नहीं मनाई अल्लाह के रसूल ने। एक मर्तबा आप जबान से बोल दो, एक मर्तबा आप जबान से बोल दो कि रसूलुल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को ईद नहीं मनाई। बिल्कुल मनाई ना, रोजा रख के मनाया, सहाबा इकराम ने 12 रबीउल अव्वल को, मैं पूछ रहा हूँ 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह ने ईद मनाई या नहीं मनाई? देखिए डेट सोमवार को रोजा रखा, इसमें मेरा आपका कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। आप पीर को रोजा रखो, क्या हम किसी पीर के दिन स्क्रीन करते हैं कि आज पीर के दिन रोजा क्यों रख रहे हो? पीर जो रसूलुल्लाह ने किया वो करो ना, रसूलुल्लाह से आगे क्यों बढ़ रहे हो? पैदाइश के दिन मनाया कि नहीं, पैदाइश के दिन रोजा रखा कि नहीं, आप ये बताइए। हफ्ते में पैदाइश का जो दिन था उस दिन रोजा रखा, तो पैदाइश के दिन रोजा रखिए। आप ईद मना रहे हैं साल में एक मरतबा जब आप ईद मनाते हैं, साल में एक मरतबा जब आप ईद मना रहे हैं, तो साल में एक मरतबा ईद मनाने की दलील ना। देखिए अब देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हम कह ये रहे हैं कि आप ये बेसिकली ईद मिलादुन नबी को इस तरीके से सोच लिया है कि डीजे बनाना, तलवारें लहराना, इसके हम बिल्कुल खिलाफ है। हमारे उलमा इस बात को खुलकर बोलते हैं। भाई आप नमाज भी पढ़ेंगे ना, आप नमाज भी पढ़ेंगे तो भी हराम है ईद के दिन। बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए हाँ, अभी आपको जो एक और थे ना मौलाना, आप लोग ईद मिलाद के दिन नमाज पढ़ते हैं? आप ईद मिलाद के दिन ईद की नमाज पढ़ते हैं? फजर के बाद से जोहर से पहले तक जुलूस खत्म हो जाता है, अब बात समझ रहे हैं। और जो अब नहीं, ईद की नमाज, ईद मिलाद की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे हम उसको एज अ फेस्टिवल, आप तो उसको ईद उल अजहा ईद उल फितर से कंपेयर कर रहे हैं ना, हम उसको खुशी मना रहे हैं। तो खुशी के दिन आपको नमाज पढ़ने का थोड़ी हुक्म है उस दिन, आप गलत बात समझ रहे हैं। अरे क्यों, ईद उल फितर में और ईद उल अजहा में तो नमाज पढ़ते हैं 2 रकात। ईद उल फितर में और ईद उल अजहा में तो ईद मिलाद में क्यों नहीं 2 रकात नमाज पढ़ते? भाई ईद मिलाद की भी नमाज होनी चाहिए ना। हम उसको ईद उल फितर और ईद उल अजहा की तरह फेस्टिवल नहीं दे रहे हैं, हम उसको सिर्फ खुशी के दिन की तरह मना रहे हैं। आप उसको आप तो लिखे में ईदों की ईद है, वो तो उस ईद से भी बड़ी ईद है। ईदों की ईद मतलब खुशियों की खुशी, खुशियों की खुशी। अब बात को खुशी, अरे सबको, अरे ईद किसको बोलते हैं सबको पता है। ईद एक फेस्टिवल है, 2 ईदें हैं मुसलमानों की जो साल भर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, उसमें हम नमाज पढ़ते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये जो ईद है, ये तो ईदों की, ये ईद तो ईदों की ईद है, तो इसमें नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा मान लें अगर मैं ईद मिलाद के मनाने लगूं आपके बोलने पर और मैं 2 रकात नमाज भी पढ़ूं ईद मिलाद की, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। मेरे बोलने पर नहीं, कुरान के बोलने पर पढ़ना चाहिए, मेरे बोलने पर नहीं। अरे कुरान के बोलने पर तो ईद ही नहीं मना पाऊंगा। आपके बोलने पर अगर मैं ईद मिलाद मनाना शुरू कर दूं और मैं आगे बढ़ करके कहूं कि भाई ईद मिलाद में डीजे नहीं, कव्वाली नहीं बजनी चाहिए, चलो हम ईद मिलाद की नमाज पढ़ते हैं 2 रकात, जैसे ईद उल फितर में 2 रकात पढ़ी जाती है, जैसे ईद उल अजहा में 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, सारे लोगों को लेकर के हम जाएं ईदगाह में, नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि आप उसको इबादत से रोक रहे हैं, क्योंकि नया इन्वेंशन हो जाएगा वो, और ये नया इन्वेंशन नहीं है। या क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई गलत काम नहीं करते, नाफरमानी करते, जो सहाबा किया करते थे, रोजा रखते हैं जो रसूलुल्लाह रखा करते थे, हम कोई नया इन्वेंशन करते ही नहीं है। आप इसको नहीं समझ में आ रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाइए कि एक पूरी ईद इजाद करना तो आपके नजदीक बिदअत नहीं है, पर उस ईद में 2 रकात नमाज इजाद कर लेना कैसे बिदअत है भाई? ईद हम लोग इजाद कर, आप फिर वही इसको पकड़ लगे, एज अ फेस्टिवल पकड़ लिए ना, हम उसको फेस्टिवल बना ही दे रहे हैं ना। हम अरे ईद का मतलब ही होता है फेस्टिवल। ईद किसको कहते हैं? साल में एक दिन आती है, उसका एक दिन मुतय्यन है, सब लोग त्योहार और किसको बोलते हैं? आप जब फेस्टिवल्स बोलेंगे तो फेस्टिवल्स, आप जाके किसी भी फेस्टिवल की तारीफ करिए तो फेस्टिवल की तारीफ में ऐसी कौन सी बात होती है? जरा जैद भाई डिक्शनरी में खोल करके देखें कि फेस्टिवल की तारीफ क्या है, फेस्टिवल की डेफिनेशन ऐसी क्या है कि ईद मिलाद पर वो नहीं साबित आती है। ईद मिलाद भी फेस्टिवल है, सब हमारे यहाँ जो फेस्टिवल की छुट्टी होती है वो ईद मिलाद पर भी होती है। ईद का मतलब ही होता है फेस्टिवल, ईद का मतलब ही होता है साल में, ईद क्या होती है? साल में एक मुतय्यन तारीख को आती है और उस दिन खुशी मनाई जाती है, उसी को फेस्टिवल बोलते हैं। उसकी एक मुतय्यन तारीख होती है, उस दिन खुशी मनाई जाती है, मखसूस अमाल अंजाम दिए जाते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है उसको, तो सब तो ईद मिलाद में पाया जा रहा है। उसकी एक फिक्स तारीख है, साल में एक मरतबा वो आती है, उस दिन खुशी मनाई जा रही है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, सारी चीजें तो पाई जा रही है ईद मिलाद पे। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ईद मिलाद फेस्टिवल नहीं है? ईद का मतलब ही फेस्टिवल होता है मेरे भाई। मुझे आप ये बताएं कि मैं अभी भी इसको समझा नहीं मेरे भाई कि मैं ईद मना रहा हूं, आप उसकी इजाजत दे रहे हैं, उसी ईद में 2 रकात नमाज पढ़ ले रहा हूं, उसकी आप इजाजत नहीं दे रहे। क्योंकि इसका जवाब सिर्फ इतना है ना, क्योंकि 2 रकात नमाज पढ़ना एक नया इन्वेंशन हो जाएगा, और ये हम नया इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो सहाबा किराम ने किया। बिल्कुल नहीं। तो ये बताया ना साहबे किराम ने कहाँ ईद मिलाद मनाई भाई? साहबे किराम ने ईद मिलाद कहाँ मनाई? खुशी मनाने का खिलाफ ही नहीं है भाई। खुशी तो हर लम्हा, एक लम्हा खुशी मनाना चाहिए। हर जब हमारे शूर में ये बात आए कि अल्लाह ताला ने हिदायत की नेमत दी, खुशी मनाना चाहिए। खुशी मनाने पर इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ ईद मनाने पर है, खुशी मनाने पर इख्तिलाफ नहीं है। देखिए ये फेस्टिवल की तारीफ क्या लिखी है, स्पेशल डे और पीरियड यूजुअली इन मेमोरी of a religious event what is on social activities, food or
सेरेमनीज। देखिए आप मेरी बात सुनिए, अगर आप उसको फेस्टिवल और ऐसा ये समझ रहे थे तो हम उसको नहीं समझते एज अ फेस्टिवल। आप हमारे कोई हम उसको समझते हैं, हम उसको ईद का दिन मतलब खुशी का दिन जिससे रसूलुल्लाह दुनिया में आए। एक मिनट, अच्छा मैं अगर मेरे भाई सुनो मैं, ठीक है ये आपकी बात मेरे समझ में आ गई कि आप इसको फेस्टिवल नहीं, मेरे को ये बात समझ में आ गई कि आप इसको फेस्टिवल नहीं मानते। एक बात बताएं, मैं एक नमाज पढ़ता हूँ, उस नमाज में मैं शुरू में सजदा करता हूँ 3, फिर रुकू करता हूँ, फिर क़याम करता हूँ, ठीक है, इस तरह से उल्टी नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मैं इसको नमाज नहीं समझ रहा, मैं इसको नमाज नहीं समझ रहा। मैं 3 सजदे कर रहा हूँ, 2 रुकू कर रहा हूँ, फिर क़याम में जा रहा हूँ, फिर उसके बाद सजदे में चले जा रहा हूँ, फिर 3 सजदे कर रहा हूँ, फिर 2 रुकू कर रहा हूँ, फिर क़याम कर रहा हूँ। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको नमाज मत कंसीडर करिए, ये नमाज नहीं है। तो ऐसा कर सकता हूँ मैं? मेरी बात सुनिए, है इजाजत मुझको? आप मेरी बात सुनिए। देखिए बुखारी की सबसे पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर आपकी नियत में है कि मैं इसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो ना आपका नमाज बस खत्म, एक्सरसाइज हो जाएगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उसको नमाज नहीं समझ रहा, मैं उसको नमाज नहीं समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ नमाज की तरह। देखो मैं पढ़ रहा हूँ नमाज की तरह, मैं उसको नमाज की तरह पढ़ रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि जबान से ये नहीं कह रहा कि मैं ये नमाज है, पर मैं उसको पढ़ रहा हूँ नमाज की तरह। तो मुझे इजाजत है ऐसा करने की? अगर आप उसको नमाज की तरह पढ़ रहे हैं, सब दुरूद ही पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा ही पढ़ रहे हैं, सूरह ही पढ़ रहे हैं, मतलब आप धोखा दे रहे हैं दुनिया को। आप सिर्फ वैसा बोल रहे हैं नहीं, एक्चुअली में वो आपका उसको अगर आप बिना सूरह फातिहा के बिना दुरूद शरीफ पढ़ाएगा ना, वैसा योगा का उसको कहा जाएगा, वैसा योगा वैसा एक्सरसाइज को कहा जाएगा, ठीक है, उसमें कोई गुनाह नहीं। आप करिए, क्या दिक्कत है, योगा करिए आप, खत्म। नमाज की तरह पढ़ रहा हूँ लेकिन लोगों को बोल रहा हूँ कि नमाज नहीं, तो गोया कि मैं धोखा दे रहा हूं। नमाज की तरह नहीं, आप नियत मत भागिए, आप जो है सूरह फातिहा मत पढ़िए, आप कुछ मत पढ़िए, बस आप ऐसे रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, और आप दुनिया को बोलिए कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, बस खत्म। आप नमाज नहीं पढ़िए, उसको कोई गुनाह नहीं है, वो आपका ऐसा योगा ऐसा एक्सरसाइज उसको दिया जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि मैं नमाज मैं उसको नमाज की तरह अगर पढ़ रहा हूँ, अगरचे उसको नमाज नहीं भी कह रहा, तो भी गोया कि मैं धोखा दे रहा हूँ। एक चीज को आप ईद की तरह मना रहे हैं और उसको ईद कह भी रहे मैं तो इसको नमाज कह भी नहीं रहता। एक चीज को आप ईद की तरह मना रहे हैं और उसको ईद कह भी रहे, और आप बोल रहे कि वो बिदअत नहीं है। मेरी वाली इबादत जिसको मैं नमाज बोल भी नहीं रहा, सिर्फ नमाज की तरह पढ़ रहा हूँ। अब आप सुन तो लो भाई, मेरी बात मैं आपकी सुनता हूँ। तो एक इबादत मैं नमाज की तरह कर रहा हूँ, हालांकि मैं उसको नमाज बोल भी नहीं रहा, पर आप कह रहे हैं कि ये जायज नहीं है। और एक दिन आप ईद की तरह मना रहे हैं और उसको ईद कह भी रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इसकी इजाजत है, और मुझको कह रहे हैं मेरी इजाजत नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए, देखिए आप जो ये क्लेम कर रहे हैं ना कि हम उसको ईद की तरह बिल्कुल फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं, तो ये आपका क्लेम गलत है। ईद में हम लोग फर्ज नमाज पढ़ते हैं, जो आप उस दिन फर्ज नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो आपका ये सबसे पहले तो क्लेम गलत हो गया कि आप उसको जो है फेस्टिवल मना रहे हैं। और दूसरी चीज, ईद के दिन रोजा रखना हराम है, ईद उल फितर के दिन, उस दिन ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन कोई फर्ज नहीं है, कोई हराम नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको मानना मनाओ, आपको नहीं मानना है आपको ऊपर हिसाब देना होगा, जब आपको थोड़ी आगे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको नहीं मत बनाओ मतलब। लेकिन आप दूसरा क्यों बोल रहे हो, किस बेसिस पर आप बोल रहे हो कि वो गलत है, आप ये बताइए। उस दिन ऐसा क्या होता है जिसको आप गलत बोल रहे हो, आप ये बताइए ना। भाई मैं भी तो 3 सजदे कर रहा हूँ, मैं थोड़ी किसी को बोल रहा हूँ कि तुम भी 3 करो। मैं बोल रहा हूँ मैं 3 कर रहा हूँ, पर 3 वाजिब नहीं है, तीसरा सजदा मुस्ताहब है। 3 सजदे कर रहे हो तो वो रसूलुल्लाह ने करके दिखाया ना 2 सजदे, आप नहीं कर सकते। आप रसूलुल्लाह ने 2 ईद मना के भी तो दिखाई, रसूलुल्लाह ने 2 ईद भी तो मना करके दिखाई। 2 ईद, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ऐसा फेस्टिवल मनाया, खुशी मनाने से मना नहीं किया। खुशी देखिए, जुम्मा को जो ईद का दिन कहा गया है ना, वो ऐसा खुशी कहा गया कि उस दिन हम खुशी मना सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर आप ऐसा खुशी कह रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म। बात नहीं खत्म हुई। आप एक चीज को ईद समझ करके मना रहे हैं, उसको ईद बोल रहे हैं, और आप ये बोले फेस्टिवल की अरबी क्या आती है भाई? देखिए, अगर हम उस दिन बिल्कुल नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज उस दिन पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको गुनाह होगा, और उस दिन अगर ऐसा कोई जो है बिल्कुल ऐसा काम करते हैं बिल्कुल फर्ज वाला काम, तब आप हमको ऐसा बोलते हैं ना, हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे। आपका क्लेम बिल्कुल गलत है। तो मैं भी तो सजदा ही कर रहा हूँ ना, फिर आप मुझे सजदा करने से क्यों इनकार कर रहे हैं? क्योंकि आप रसूलुल्लाह ने मना किया। बिल्कुल, मैं किसी में जवाब दे सकता हूँ। आप देखिए, इस मामले से आगे बढ़िए, मैं बहुत सारी दलील क्या पता, बहुत सारी दलील मेरे पास है, लेकिन आप इतना देर हो गया अब इसी बात पर। देखिए, अभी मैंने गूगल पे सर्च किया कि फेस्टिवल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उस फेस्टिवल के जो मानी आए हैं एआई से, उसमें से एक ईद भी आए हैं। देखिए, उसको बहुत तरीके से कहा जा सकता है भाई, उसको बहुत तरीके से कहा जा सकता है। उसी तरीके से ईद को भी ऐसा खुशी कहा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप गूगल का एक माना, उसका एग्जैक्ट माना ईद नहीं है, उसको कहा जा सकता है, उसी तरीके से ईद को खुशी कहा जा सकता है। देखिए, आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे हिसाब से मुसलमानों को मुतहिद हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग जो है ये दावा करते हैं ना कि बिल्कुल हराम काम कर रहा है, बिल्कुल शिर्क कर रहा है, ये देखो मुझे तकलीफ होती है। ये देखो, मैं अभी ये गूगल पे मैं देख रहा था कि फेस्टिवल आप जब बात कर रहे थे, तो देखो तो ये देखो इसमें जो ईद फेस्टिवल जो है ना, अरबी में देखो फेस्टिवल को देखिए, ये फेस्टिवल मैंने लिखा है, फेस्टिवल के एक माना देखो यहाँ पे ईद भी बताया गया है, आपको दिख रहा है ये। देखिए, एक माना ईद बता दिया गया ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको एक माना ले लो, हम उसको एक माना ऐसे खुशी ले रहे हैं, ईद का एक माना खुशी भी निकलेगा। आपने सबसे देखो एक बात,
ईद का एक माना खुशी भी निकलेगा, सीधी सी बात है। देखिए ईद का माना होता है खुशी मनाने वाला दिन। भाई देखो अभी बहुत देर तक बात हो गई, बहुत देर तक की बात हो गई, और भी लोग हैं बात करने वाले। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ कि ईद कब मनाना है, कब नहीं मनाना है। ईद शरीयत का हिस्सा है, जैसे नमाज शरीयत का हिस्सा है। जैसे आप नमाज में ये कह रहे हैं, भाई इतनी बात हो गई, काफी है भी, कितना और भी सब पूरा इस इमाम से थोड़ी बात करके रह सकते हैं। देखिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैं बिल्कुल साथ हूं इस बात पर कि उस दिन जो डीजे बजता है, उस दिन जो नाच गाना होता है, ये बिल्कुल हराम है। हमारे उलमा इस बात को हराम कहते हैं। उसका हम अरे भाई वो मसला ही नहीं, नाच गाना तो ईद उल फित्र में भी करे तो हराम है। असल मसला ईद नाच गाने से नहीं है, असल मसला नाच गाने से नहीं मेरे भाई। वो तो एक जिमनी तौर पे हम बोल देते हैं कि नाच गाना होता है, नाच गाना तो कभी भी हो तो हराम है। लेकिन ईद के दिन आप नमाज भी पढ़े तो भी हराम है ना। मैंने क्या बोला, ईद के दिन अगर आप नमाज पढ़े तो भी हराम है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ही नहीं है। आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल, मेरा रसूलुल्लाह कलमा पूरा नहीं होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही ये होता है कि शरीयत अल्लाह ताला ने आप पर नहीं रसूलुल्लाह पे नाजिल की है। बहुत ठंडे दिमाग से इस पर गौर करिएगा कि शरीयत अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पे नाजिल की है। तो उस शरीयत का हिस्सा ईद भी उस शरीयत। अरे भाई मेरी बात सुन लो, मैं बस अब आखिरी बात कर रहा हूँ, बात हो गई बहुत देर तक। मैं बहुत नरमी से आपको मोहब्बत से समझा रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह जो शरीयत, हम जिस शरीयत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही होता है कि हम उस शरीयत के मानने वाले हैं जो रसूलुल्लाह ने हमको दी है। शरीयत बताने का हुक्म सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, सिर्फ रसूलुल्लाह ही पर शरीयत नाजिल हुई है। और शरीयत क्या है ये रसूलुल्लाह बताएंगे। बिल्कुल, ईद भी शरीयत का हिस्सा होती है, तो रसूलुल्लाह ने इसलिए हमको बताया। देखो ईद भी रसूलुल्लाह ने बताया हमको। शरीयत का हिस्सा क्या है? रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना। शरीयत का हिस्सा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है, और उस दिन हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार तो हम 365 दिन करते हैं, बात समझ रहे हैं, हर दिन करते हैं। लेकिन उस दिन इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उस दिन रसूलुल्लाह ने रोजा रखा। उस दिन जो है जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, सारे फरिश्ते जो खुशियां मना रहे थे। अब इसमें ऐसा कोई गलत काम, नाजायज काम हमको उसको प्रमोट नहीं करते, वो हराम है। आप मेरी बात ही नहीं सुने भाई, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। एक मिनट बताते हैं जी शेख, बताइए आप जो बोल रहे थे कंप्लीट कर लेते हैं। मैं पहली बार म्यूट किया। आप मेरी बात ही नहीं सुनते हैं यार, फिर लोग मुझको बोलते हैं कि हम नहीं बोलने देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं ना, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब होता है कि शरीयत सिर्फ रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई, आखिरी जो दीन इस्लाम जो हमारी शरीयत इस्लामिया है, और उसको बताने का हक सिर्फ रसूलुल्लाह को है। और इस शरीयत में कितनी ईदें होंगी ये भी रसूलुल्लाह बताएंगे, हम या आप नहीं बताएंगे। कोई चौथी सदी का बादशाह नहीं बताएगा कि हमारी शरीयत में कितनी ईदें, वो रसूलुल्लाह बताएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कद अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा। देखिए दो दिन थे जिसमें अंसार भी खुशी मनाते थे। अल्लाह के रसूल चाहते तो उसको छोड़ दे देगी, ठीक है तुम लोग खुशी मनाओ, पर रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि ठीक है तुम 2 दिन खुशी मनाओ और 2 दिन शरीयत वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा। अल्लाह ताला ने इन 2 ईदों के बदले में तुमको 2 ईदें और दी हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया जा रहा है। अरे भाई मेरी बात तो सुनो पूरी, बीच में आप क्यों टोक देते हो? ये अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि इस शरीयत में ईद है। ये किसने बताया? कद अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा, कि जो 2 दिन तुम मनाते थे खुशी के, उसके बदले में 2 और दिन अल्लाह ताला ने दिए हैं जो इन 2 दिनों से बेहतर है जो तुम मनाते थे, यौमुल फित्री व यौमुल अज़हा, यौमुल फित्र का दिन और यौमुल अज़हा का दिन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत बताई, शरीयत अल्लाह ने नाजिल की, उस शरीयत में अल्लाह ताला ने ईदें भी नाजिल कर दी। जितना रसूलुल्लाह ने बता दिया उतना मान लेना, ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का ये मतलब नहीं है, जैसे अल्लाह ताला की इबादत का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तरफ से नई नई इबादतें करें कि 2 की जगह 4 सजदे करें। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तरफ से ईदें कर लें रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। मोहब्बत का तकाजा इत्तिबा होता है, और इत्तिबा का मतलब पीछे चलना होता है। आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि रसूलुल्लाह ने 2 मनाए तो मैं 4 मनाऊंगा, ये मोहब्बत नहीं है, ये तो नाफरमानी है, ये तो गुस्ताखी है रसूलुल्लाह की। देखिए अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप जो बात कह के सुना रहे हैं कि सिर्फ 2 ईद जो है शरीयत पर है, तो 2 ईद जो है ना एज अ फेस्टिवल और एज अ उसको मनाना है, वो एज अ फर्ज, वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो शरीयत पर है। आप जाइए तहकीक करके आइए कि ईद का मतलब ही फेस्टिवल होता है, एज अ फेस्टिवल ही आप मनाते हैं। आप एक
ایسی بات کا انکار کر رہے ہیں جس کا مجھے رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عید میلاد فیسٹیول ہے, آپ لوگ اس کو فیسٹیول سمجھ کر کے مناتے ہیں, دنیا جانتی کہ وہ فیسٹیول ہے. آپ جا کر کے یوٹیوب پہ سرچ کرو, آپ جا کر کے کسی عام آدمی سے پوچھو جو مناتا ہے, وہ بولے گا مسلمانوں کے 3 تہوار ہیں. آپ مجھے بولنے دیجیے سر, دیکھیے میں یہ بول رہا ہوں نا کہ جمعے کو ابھی وہ ایک لیڈی ہے ابھی مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے, ورنہ ابھی میں بتاتا کہ وہ کے کریٹ کے نام سے وہ بول رہی ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 عیدیں ہیں لیکن مسلمان 3 عید مناتے ہیں. بھائی آپ دیکھیے میں آپ کو بولنے نہیں دے رہا ہوں تو میں کیا اپنی طرف سے جواب دے رہا ہوں. آپ ایک ہی بات دہرا رہے ہو بار بار نا. یہ پہلی مرتبہ کوئی بول رہا ہے کہ عید بھی اور فیسٹیول بھی نہیں. عید کا مطلب ہی فیسٹیول ہوتا ہے. میں ایک بات بالکل نہیں کرا رہا ہوں, میں آپ کے سوال بھائی آپ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں اور اس پہ بات ختم کریں گے, نہیں بس ہو گیا آپ کی جو بات. میں نے سن لیا آپ بول رہے ہیں کہ آپ عید میلاد فیسٹیول کے طور پہ نہیں مناتے. میں نے سن لیا, اب اتنی بات آپ کی سن لیا. آپ کی طرف سے دوہرا دیتا ہوں کہ آپ بول رہے ہیں کہ آپ عید میلاد ایز اے فیسٹیول نہیں مناتے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں زید بھائی, اب ختم کر دیتے ہیں یہاں پر گفتگو, کیونکہ وہ بات بار بار دہرا کے ہو رہی ہے. میرے بھائی اب کل آئیے گا, آپ اور بات کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے. آپ جو بول رہے ہیں میں نے سن لیا, وہی بات دہرانے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد آپ فیسٹیول کے طور پہ نہیں منا رہے. میں بار بار ثابت کر رہا ہوں کہ نہیں, عید کا مطلب بھی فیسٹیول ہوتا ہے. آپ عید کا لفظ نکلوا دیں. سارے بریلوی یہ بولے کہ ہم عید نہیں بولیں گے اس کو, پھر سارے بریلوی یہ بولے کہ ہم 12 ربیع الاول کو نہیں منائیں گے. ہم روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی منائیں گے, آپ کی سنت کی اتباع کر کے, نمازیں پڑھ کر کے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے. ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. چلو اس پوائنٹ پر ہم سب متفق ہو جاتے ہیں کہ اختلاف ختم کرنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے چینل کا نام اختلاف حل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, آپ اس سے عید کا لفظ نکال دو. آپ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ مت کرو, آپ روز مناؤ. آپ روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناؤ. آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کر کے, آپ پر درود بھیج کر کے, آپ کی سنتوں کی اتباع کر کے. ہمارا اس پہ آپ پہ کوئی اختلاف نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خوشی منانے پر کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ. اختلاف 12 ربیع الاول کو عید منانے پر ہے. اور آپ نے خوشی منانے کی دلیل دی, میں نے مان لیا کہ رسول اللہ کی آمد پر خوشی منانی چاہیے, رسول اللہ کی بعثت پر خوشی منانی چاہیے. لیکن آپ نے اب تک عید میلاد منانے کی اتنی دیر تک ہم گفتگو کر رہے ہیں, آپ نے اب تک 12 ربیع الاول کو عید منانے کی کوئی دلیل نہیں دی. لہٰذا یہ بھی آپ کے آنے سے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے پاس بھی 12 ربیع الاول کو عید منانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بس بھائی ارے کتنا, اور بھی لوگوں کو آنے دیں, اور بھی ہے نا گفتگو کرنے والے. آپ بول ہی رہے ہیں, اگر آپ کو بولنے نہیں دیا گیا تو یہ جواب کس کا دے رہا ہے؟ نئی دلیل لینا ایسے کریں گے, آپ کی نئی دلیل ہم لوگ بعد میں پھر سے اگر ٹائم بچا تو الگ دلیل لیں گے. اگر آپ نے جو بات کہی ہے اور ایک بار کہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح بات بولنا چاہ رہا ہوں, وہ الگ بات بولنا چاہ رہا ہوں. جو ایک سوال انہوں نے کیا, میں بالکل دیکھیے انہوں نے جو کہا نا کہ انہوں نے جتنی دلیل آپ نے جو ابھی ایک ہی بات کتنی بار کہی ہے اور ایک بار کہنا چاہتے ہیں وہی بات, میں ایک ہی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. سن لیجیے آپ, انہوں نے جو کہا کہ شریعت میں صرف 2 عید ہے, اور جو ہے تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل شریعت میں جو ہے بالکل 2 عید ہے. اگر آپ اس کو ایز اے فرض سمجھے جیسے رسول اللہ نے بیان کیا, اور جمعے کو عید کا دن کیوں کہا گیا تھا, خوشی کا دن, اسی طریقے سے ہم ایسا خوشی کا دن کیوں مناتے ہیں. اب ہم بالکل ناجائز کام اس دن نہیں کرتے ہیں, اور جو کرتا ہے سو غلط کہتے ہیں. سمپل سی بات تھی میری, آپ کو جو ماننا ہے مانیے. آپ نے یہ بات سب کہی ہے بھائی, سب کہی ہے, آپ سن لیجیے گا, کم سے کم 3-4 بار کہی ہے, اور ایک بار آپ نے کہہ دیا. آپ یہ بات کہہ چکے ہیں اور ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ جمعہ کے لیے حدیث لا رہے ہیں, ویسے عید میلاد کے لیے بھی حدیث لے آئیے. کل لے آئیے گا, پرسوں لے آئیے گا, جب ہماری اسٹریم ہوگی تب لے آئیے گا. جیسے آپ نے جمعہ کا دن ثابت کر دیا کہ وہ عید کا دن ہے, ہم نے مان لیا, ویسے حدیث لے آئیے کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے, ہم مان لیں گے. عید آپ کے بولنے سے نہیں, ہم نے رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے, ہم آپ کے بولنے سے عید نہیں منائیں گے, ہم رسول اللہ کے بولنے سے عید منائیں گے. صاف سیدھی بات ہے. بریلوی کے بولنے سے ہم عید نہیں منائیں گے, رسول اللہ کے بولنے سے عید منائیں گے. آپ اپنی اجتہادات, اپنے قیاسات ہم پر مت تھوپیے. ہم آپ کے بولنے سے عید نہیں منائیں گے, ہم رسول اللہ کے بولنے سے عید منائیں گے. بہت اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن وقت ہو گیا کیونکہ مجھے اگلے گیسٹ کی طرف بڑھنا ہے نا, اور وقت بچ گیا. اگر آپ کے کوئی نئی دلیل ہے تو چیٹ میں بتائیے, میں آپ کو پھر لے سکتا ہوں اگر وقت بچ گیا آخر میں تو. ہاں باقی اور بہت لوگ ویٹ کر رہے ہیں. شکریہ. ہاں جی, جزاک اللہ خیر.